हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Distance traveled by it in fifth half second is 1.5 meter, 5.25 meter, 2.25 meter, 30.25 meter. Second, question number second, a balloon starts rising from ground from rest with an upward acceleration 2 meter per second square. Just after 1 second, a stone is dropped from it. The time taken by stone to strike the ground is 0.3 second, 0.7 second, 1.1 second, 1.4 second. Question number 3. Two cars A and B are moving in same direction with velocities 30 meter per second and 20 meter per second. When car A is at distance D behind the car B, the driver of car A applies brakes, producing uniform retardation of 2 meter per second square. There will be no collision when D is less than 2.5 meter, D is greater than 125 meter, D is greater than 25 meter, D is less than 125 meter. Question number 4. Body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach maximum height. The distance travelled by the body will be same in first and 10th second, second and 8th second, 4th and 6th second, both B and C. Now solution. Question number 1. A particle starts moving with acceleration 2 meter per second square. Distance travelled in the fifth half second is 1.5 meter, 5.25 meter, 2.25 meter, 30.25 meter. फिफ्थ हाफ, जो फर्स्ट हाफ होगा, फर्स्ट हाफ सेकंड, वो होगा 0 to 0.5 सेकंड. सेकंड हाफ सेकंड will be 0.5 to 1 second. Third half second 1.0 to 1.5 second. Fourth half second 1.5 to 2.0 second, and fifth half second is 2 second to 2.5 सेकेंड. तो 2 सेकेंड से 2.5 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. और S इज U इज 0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए टी स्क्वायर. ए की वैल्यू है 2 टी स्क्वायर, तो एस इज टी स्क्वायर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2.5 सेकेंड इज इक्वल टू, अगर इसको एस 2.5 लिखें, 2.5 का स्क्वायर 6.25 मीटर. डिस्टेंस
traveled in 2 सेकेंड पर S20 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो डिस्टेंस traveled in fifth half second S2.5 minus S2.0 6.25 minus 4.0 2.25 मीटर। तो फिफ्थ हाफ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 2.25 मीटर। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड from rest with an upward acceleration 2 meter per second square. Just after 1 second a stone is dropped from it. The time taken by the stone to strike the ground is 0.3 second, 0.5, 0.7 second, 1 second, 1.4 second. Ground, यहाँ से एक बैलून एक अपवर्ड डायरेक्शन में बैलून जा रहा है। बैलून इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ से 1 सेकेंड टाइम के बाद, दिस टाइम इज 1 सेकेंड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड। सपोज दिस पॉइंट इज ए। जो ग्राउंड पर पॉइंट है दैट इज सपोज जी। तो स्पीड या वेलोसिटी upward, velocity of balloon at point A टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से और इनिशियल यहाँ पर u इज 0। तो एट VA विल बी u प्लस 80, u is 0, 0 plus 2 into 1 second, 2 meter per second in upward direction. Distance AG S is equal to UT plus half AT square. This is formula. तो AG की वैल्यू हो जाएगी 0, U की वैल्यू 0, T इज 1 सेकेंड प्लस हाफ A इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हाइट है 1 मीटर। ए पर हमने बैलून से एक स्टोन ड्रॉप किया, दिस इज स्टोन। तो जो स्पीड बैलून की है एट ए, वही इनिशियल स्पीड स्टोन की होगी। बैलून इज गोइंग अपवर्ड, तो इसकी स्पीड भी अपवर्ड होगी एंड दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बैलून से बाहर जब ड्रॉप कर देंगे तो इस पर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। इसको
वापस ग्राउंड पर आने में सपोज टी टाइम लगता है, तो फॉर बैलून this is displacement, (1 meter). For balloon ground initial u is 2 meter per second upward, or g gravitational, this is downward, 10 meter per second square, and this displacement is 1 meter. S is equal to ut plus half gt square, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लें और डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो s डिस्प्लेसमेंट इज -1 डाउनवर्ड है, u इज +2, t प्लस ये g इज हाफ g -10 t स्क्वायर, 2t minus 5t square, और 5t square minus 2t minus 1 is 0। तो t की वैल्यू होगी 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू 5। 2 प्लस माइनस 4 plus 20 by 10, 2 plus minus 24 root by 10, 24 root 4, 16, 8, 8, 9, approximate 4.9, 2 plus minus 4.9 by 10, और 2 plus 4.9 by 10 and 2 minus 4.9 by 10, this is negative, and time negative is not possible. 6.9 by 10 second और 0.69 सेकेंड से 0.7 सेकेंड। जो स्टोन को अर्थ तक आने में टाइम लगेगा वो 0.7 सेकेंड। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 2 cars A and B are moving in same direction with velocities 30 meter per second and 20 meter per second. When car A is at a distance d behind the car B, the driver of the car A applies brakes, producing uniform retardation of 2 meter per second square. There will be no collision when d is less than 2.5 meter, d is greater than 125 meter, d is greater than 25 meter, d is 125 meter. एक रोड this is car A
car B and this is car A. डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, कार बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। और पॉइंट के रूप में बनाए हैं। दिस इज कार बी एंड कार ए। अब A, driver of car A applies brakes and retardation is 2 meter per second square. Suppose after t time कार जब जस्ट इससे टच करे कार ए, तो टी टाइम बाद मान ली सपोज ये इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज एस। टी टाइम में जो कार ए मूव करेगी वो दिस डिस्टेंस एस ए और कार बी मूव करेगी दिस डिस्टेंस एस बी। ये मिनिमम डिस्टेंस एस है, अगर डिस्टेंस शुड बी मोर देन एस। तो एस इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी फॉर मिनिमम एस ए 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड 30 t minus half retardation is 2 t square. This is SA minus SB. SB constant है, स्पीड 20 into t। 30 t minus t square minus 20 t और 10 t square s for minimum value of s। ds by dt मस्ट बी 0। तो हम ds by dt इसका कर दें तो ds by dt होगा d by dt 10t minus t square इज इक्वल टू 0। 10t का डिफ्रेंसेशन होगा 10 इंटू 1 और 2t स्क्वायर का डिफ्रेंसेशन होगा 2t 0। 2t is equal to 10, t is equal to 10 by 2, 5 seconds. After 5 seconds, A and B will just touch each other. तो मिनिमम S की वैल्यू होगी, इसमें हम S की t की वैल्यू पुट कर दें 10t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो जो डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन d शुड बी ग्रेटर देन s और d शुड बी ग्रेटर देन 25 मीटर। फॉर अवॉइडिंग collision d should be greater than 25 meter. This C is correct option.
Question number 4. A body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach maximum height. The distance traveled by the body will be same in first and 10th second, second and 8th second, 4th and 6th second, both B and C. बॉडी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ से ये टर्न करती है डाउन में। यहाँ से टर्न ग्राउंड 5 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सपोज फर्स्ट सेकेंड पर वो A1 पॉइंट पर, सेकेंड पर के एंड ऑफ सेकेंड A2, A3, A4 and A5. Next downward, this is A6, A7, A8, A9 and this is A10 पे वापस आ जाती है, सपोज A0. Distance traveled in first second is this. In first second. Distance traveled in second is this. Second. This is third. The distance traveled in third second. This is distance traveled in fourth second. This is distance traveled in fifth second. This distance traveled in sixth second. This distance traveled in seventh second. This is eighth second. This is ninth second. And this is 10th second. तो जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही डिस्टेंस इसके सामने जो सेकंड आ रहा है उसमें ट्रेवल करेगी। दिस इज 10th। तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही सेम 10th सेकंड में। सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो है सेम 9th सेकंड में। थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही 8th सेकंड में। फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही 7th सेकंड में। एंड फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही 6th सेकंड में। इस तरह से सिमिलर होंगी डिस्टेंसेस जो इनके सामने के सेकंड है। जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट मैच विद दिस, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन।